بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ بھارت اور چین کی لڑائی میں یہ ہمیشہ سے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ جنگ ہوتی ہے، جھڑپ ہوتی ہے تو پاکستان اس میں انوالوڈ ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں میں بھی جب یہ جھڑپ ہوئی ہے، چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے، تو اس میں پاکستان انوالوڈ ہوا ہے۔ پاکستان نہ صرف لائن آف کنٹرول کی سطح تک انوالو ہوا ہے بلکہ اس سے آگے بھی پاکستان کے طول و عرض میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کو بھارت کے شہریوں کی جانب سے، فوجیوں کے اہل خانہ کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے۔ یہ خط بہت اہم ہے، اس میں بہت اہم سوالات کیے گئے ہیں۔ اس خط کی بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی سرکار نے، سرنڈر مودی سرکار نے اس وقت ایک اجازت دی ہے ہنگامی فنڈز کے استعمال کی اپنی افواج کو۔ یہ 500 کروڑ کی امداد ہے اور اس کی ہنگامی طور پر، فوری طور پر اجازت دی گئی ہے استعمال کی، اور کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ویپنری سسٹم جو افواج کی ضرورت ہو، چین سے کشیدگی کی صورتحال میں وہ خریدا جا سکتا ہے۔ اور پھر پاکستان میں اس تمام صورتحال کے اثرات کے نتیجے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک اہم ترین انٹرویو اب سے کچھ دیر پہلے دیا ہے۔ اس انٹرویو میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ان باتوں کی تصویر ہمیں گزشتہ کچھ دنوں میں نظر آئی ہے اپنے طول و عرض میں پاکستان میں، اور اس کے مزید نظر آنے کا بھی امکان ہے۔ پاکستان اس سلسلے میں بہت ویجیلنٹ رہا ہے اور مزید ہونے کی ضرورت بھی ہے، اس بات کا ادراک بھی موجود ہے۔ تو سب سے پہلے جو جنرل بپن راوت کو خط لکھا گیا ہے، اس خط میں 3 باتیں کی گئی ہیں۔ اس خط میں پوچھا گیا ہے کہ گلوان وادی میں جو کچھ ہوا کیسے ہوا، تفصیلات بتائی جائیں کہ کیا ہوا۔ یہ سوال بھی کیا گیا ہے کہ جنرل بپن راوت جو ہیں وہ اس عہدے پر ہیں، اور ان کے اس عہدے پر آنے کے وقت یہ کہا گیا تھا کہ بھارت کا جو دفاع ہے، جو تحفظ ہے، وہ بہتر ہوگا، لیکن سب کچھ اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ اور اس خط میں ان کے کردار اور ان کی جو مداخلت ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ اس خط میں جو انگلش میں لکھا گیا ہے، جو اس کا ترجمہ ہے ہماری ٹیم نے کیا، اس میں موٹی موٹی چند باتیں کیا ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کہا گیا ہے فوجیوں کے اہل خانہ کی جانب سے، عام شہریوں کی جانب سے، کہ ہم خوفزدہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے فوجی جو ہمارے موجود ہیں سرحد پر، ان کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے فکر مند ہیں اور دعا گو ہیں، لیکن ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ گلوان میں کیا ہوا، ہمیں تفصیلاً بتایا جائے۔ وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جیسے نریندر مودی نے کہا ہے کہ چین نے مداخلت نہیں کی، اگر چین نے مداخلت نہیں کی تو ہم نے اتنا بڑا جانی نقصان کیسے اٹھایا ہے، یہ ہمیں بتایا جائے۔ پھر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر چین نے مداخلت نہیں کی تو ہم نے حملہ کیا، کیا ہمارے فوجی چین کی حدود کے اندر گئے یا پھر ہم نے دفاع کیا؟ اس سوال کا جواب دیا جائے۔ اگر ہم نے حملہ کیا تو ہمارا حملہ کامیاب کیوں نہیں ہوا، کن حالات کی بنا پر ہم نے حملہ کیا، اور دفاع میں ہمارا اتنا بڑا جانی نقصان کیسے ہوا، کیونکہ اب یہ تعداد 20 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ پھر یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ بطور بھارتی شہری ہمیں مسلسل مودی سرکار کے سٹیٹ آف ڈینائل کی وجہ سے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، کیا کبھی بھی ہم حقیقت کو جان سکیں گے؟ پھر انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ہمارے جو فوجی ہیں یہ اپنے بنائے ہوئے، جو چینی فوجیوں کے لیے بنایا گیا جال تھا، کسی ایسے جال میں خود تو نہیں پھنس گئے؟ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جب چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ تشکیل دیا گیا، آپ کو اس پر فائز کیا گیا، تو یہ بتایا گیا تھا کہ بھارت کا تحفظ بہتر ہوگا، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بھارت کے شہریوں نے، فوجیوں کے اہل خانہ نے بپن راوت سے پوچھا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اس کے بالکل الٹ ہے جو ہمیں یقین دلایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا ہم مداخلت کر رہے ہیں، اور کیا آپ کی اس مداخلت کی پالیسی کی وجہ سے ہمارے فوجی محفوظ نہیں ہیں؟ اور اس تمام صورتحال میں سرنڈر مودی سرکار نے جو مسلسل چپ رہی، جس کی چپ پر بھارت میں سوال ہو رہا ہے، اور راہل گاندھی نے انہیں نریندر مودی کی جگہ سرنڈر مودی کہہ دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو بھارتی فوجی ہیں،
जो लद्दाख बॉर्डर पर मौजूद हैं, चीन के साथ सरहद पर मौजूद हैं, 3,500 किलोमीटर की पट्टी पर जो मौजूद हैं, ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक अपने दिफा के लिए फैसला और हथियार इस्तेमाल करने में आज़ाद हैं। इससे पहले जो दोनों मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के तहत सरहद पर लद्दाख की इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद जो फौजी हैं वो अपने पास फायर वेपन नहीं रख सकेंगे, वो इन आतिशी हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, किसी को गोली नहीं लगेगी। हालिया लड़ाई में भी जो लड़ाई हुई थी ये हाथों पैरों की लड़ाई थी, लाठियों की लड़ाई थी, और इसमें भारत का ये जानी नुकसान हुआ है। बार बार मैंने आपसे कहा कि चीनी साइड पर भी जानी नुकसान हुआ है, लेकिन चीन की जानिब से ये नंबर्स जो हैं वो बताए नहीं गए हैं। इस भारतीय सरकार की पॉलिसी के बाद कि अब आप अपने दिफा में जो चाहें हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, चीन का सबसे बड़ा सरकारी मीडिया जो है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर भारतीय मीडिया की रिपोर्ट की गई ये बात कि भारतीय फौजियों को इजाज़त होगी कि वो उस एग्रीमेंट को तोड़ें जो दोनों मुल्कों के दरमियान है और कोई भी हथियार इस्तेमाल करें जिसमें गोली भी चल सकती है, तो फिर भारत के लिए इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे और भारत मुआहिदा तोड़ने का मुर्तकिब होगा। इस तमाम सूरत हाल में अब नरेंद्र मोदी की, बल्कि सरेंडर मोदी की हुकूमत ने, मरकज ने अपनी अफवाज को असलहा खरीदने के लिए 5 अरब रुपए की, 500 करोड़ भारतीय रुपयों की हंगामी फंड्स की मंजूरी दे दी है। ये मुलाकात हुई राजनाथ सिंह के साथ, सर्विसेज चीफ्स की बिपिन रावत भी इसमें मौजूद है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इसमें गलवान की सूरत हाल का जायजा लिया गया, लद्दाख की सूरत हाल का जायजा लिया गया। एयर चीफ गए थे, इस तमाम सूरत हाल को देख कर आए थे, उन्होंने वहां मौजूद अफराद को ब्रीफ किया और फिर यहां पर ये बताया गया कि 500 करोड़ की हंगामी ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है कि कोई भी वेपन सिस्टम भारतीय फौज इस सूरत हाल में जिसका सामना है चीन के सामने वो कर सके। पहले भी दोनों अफवाज की जानिब से तैयारी हो रही है, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में भी बताया था। तो उस तैयारी में दोनों जानिब से जो जहाज़ हैं, लड़ाका जहाज़ हैं, टैंक्स हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं, इन्हें फॉरवर्ड बेसिस पर पहुंचा दिया गया है, सरहद के नज़दीकी बेसिस पर पहुंचा दिया गया है। दोनों जानिब से जो बेल्ट है, सप्लाई चेन है फौजियों के लिए, वो क्रिएट कर ली गई है। समंदर में मौजूद अफवाज जो हैं वो अलर्ट पर हैं, बेसिस अलर्ट पर हैं। तो जंग की सी सूरत हाल मौजूद है और इसके लिए दोनों जानिब तैयारियां भी मौजूद हैं। और इन हालात में अब भारतीय अफवाज इस 500 करोड़ के हवाले से एक फहरिस्त तैयार कर रही है। इससे पहले भी भारत ने हालिया दिनों में बड़े पैमाने पर दिफाई खरीदारी की है और उस दिफाई खरीदारी के अलावा भारतीय फिजाइया ने इन 500 करोड़ के अलावा 6,000 करोड़ की एक डील है, नरेंद्र मोदी हुकूमत को ये तजवीज़ दी है कि उन्हें रूस से 33 फाइटर जेट्स चाहिए और ये 33 फाइटर जेट्स जो हैं वो हालिया लड़ाई की इस सूरत हाल में उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस तमाम सूरत हाल में भारत में इस वक्त ट्रेंड कर रहा है गलवान के बलवान। ये जो भीगी बिल्ली बने थे इनको अब बलवान करार दिया जा रहा है। भारतीय चैनल्स जो हैं उनकी जानब से ट्रेंड किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भारतीय फौजी जो हैं वो अपनी सरजमीन के दिफा में जमा मर्दी से लड़े और जमा मर्दी से लड़ते हुए मारे गए। सबसे पहले तो जो लड़ता है, जो लड़ रहा है, सरहद पे खड़ा हुआ, वो किसी भी मुल्क का फौजी हो, उसके उस जज्बे की कि जिसके तहत वो लड़ रहा है, उस जज्बे की तारीफ करनी चाहिए, वो दुश्मन का फौजी भी क्यों ना हो। और ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि पाकिस्तान के भी उन फौजियों की जो जमा मर्दी से लड़ते हैं, दुश्मन मुल्क की जानिब से भी तारीफ की गई है। और पाकिस्तान में भी जब अभिनंदन पकड़ा गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है, ये हमारा दुश्मन है लेकिन ये अपने मुल्क के लिए अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है, तो इसके जो हुकूक हैं वो इसको मिलने चाहिए। तो उस शख्स की जो अपने मुल्क के दिफा में खड़ा है, उसकी हुकूमत कितनी गलत है, उसके सियासतदान कितने गलत हैं, उनकी पॉलिसी कितनी गलत है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर खड़ा है, इस बात की रिस्पेक्ट तो मौजूद होनी चाहिए। तो गलवान की जो बलवान हैं इनके लिए इस वक्त भारत में ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है गलवान के बलवान, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लड़ते हुए जमा मर्दी से लड़ते हुए मारे गए। लेकिन सूरत हाल जो है वो उसके यकसर मुख्तलिफ है। ये भारत की अपोजिशन खुद भी बता रही है, मीडिया को इस्तेमाल करके अब इस वक्त झूठ बोलने का सिलसिला जारी है।
मैंने 2 वीडियोस पहले आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी के लिए 2 मुश्किलात हैं। एक, अपने लोगों को कैसे बताया जाए कि हुआ क्या, हमने चीन का कितना जानी नुकसान किया था, क्योंकि चीन ने नंबर्स जारी ही नहीं किए थे। दूसरा, जो इलाका ले लिया गया है चीन की जानिब से, अपना इलाका वापस भारतीय फौज से, उससे अगर भारत ये क्लेम करता है कि हमारा इलाका है, तो चीन को वापस धकेला कैसा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये भी कह चुके कि चीन हमारे एरिया में अंदर आया ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था वीडियो के आगाज में कि पाकिस्तान को चूंकि ये जो सूरत हाल है इसमें इन्वॉल्व किया जाता है भारत की जानिब से, पाकिस्तान पहले भी इन्वॉल्व हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल बिगड़ी है, शहरियों की शहादत की खबरें हमारे पास तकरीबन हर रोज आ रही हैं। तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर इस वक्त मुतनब्बे किया है और कहा है कि वजीरिस्तान हो या LOC, भारत को पाकिस्तान का जो अमन है वो एक आंख नहीं भाता, और भारत ऐसे तमाम मौके पर जब भी सूरत हाल बिगड़ती है, भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो फ्रंट खोलने के लिए तैयार हो जाता है। भारत इस वक्त पाकिस्तान की जो नेक नामी है अक़वाम आलम में, जहां पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया था अफगानिस्तान में, वहां भी टांग अड़ाकर हालात को खराब करना चाहता है। वजीर खारजा का यह भी कहना है कि भारत इस वक्त वहां भी मुदाखलत कर रहा है, वो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता है। वजीर खारजा इसकी वजह ये बताते हैं कि सरेंडर मोदी सरकार शदीद दबाव में है और लद्दाख में नेपाल के हाथों जो उन्हें मुसलसल रुसवाई मिली है, उस रुसवाई से अपने लोगों की तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट खोल रहे हैं। और अब उन्होंने मुतनब्बे किया है कि भारत पाकिस्तान में अपने स्लीपर सेल मुतहर्रिक कर सकता है, और उन्होंने कहा है कि कराची में ऐसे वाकयात हुए हैं, सिंध में ऐसे वाकयात हुए हैं। मैंने आपसे अर्ज किया था ये जो सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी है जिसने जिम्मेदारी कबूल की रेंजर्स पर होने वाले हालिया हमलों की, इसका सिंध में कौम परस्त जमातों का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन का, और फिर इनके साथ साथ बाज जो मिलिटेंट विंग्स हैं इन लोगों का हमारे इदारों के मुताबिक एक गठजोड़ है, और इस इत्तेहाद के नतीजे में हमें नजर ये आ रहा है कि ये मिलकर हमारी अफवाज को, हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं। ये वाकयात पेश आए हैं, इनकी जानिब से जिम्मेदारी कबूल की गई है, इसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। सिंध में जो इनके बड़े ये समझ लीजिए कि नफूस वाले इलाके हैं, उनमें शामिल हैं लाड़काना के आसपास के इलाके और जामशोरों के नज़दीक सन का इलाका। यहाँ जो कौम परस्त जिनमें दहशतगर्द अनासर मौजूद हैं, शिद्दत पसंद अनासर मौजूद हैं, उनके बड़े पैमाने पर ठिकाने मौजूद हैं, और उनकी जानिब से ऐसी कार्रवाइयाँ पहले भी की गई हैं, और अब भी इन्हीं इलाकों की जानिब जो है वो इशारा जा रहा है कि यहाँ पर यह अनासर मौजूद हो सकते हैं। इन हालात में आप देखिए कि वजीरिस्तान में शहादतें हुई हैं, जब ये वजीर खारजा कह रहे हैं कि इनके स्लीपर सेल मुतहरिक हो सकते हैं। वजीरिस्तान में शहादतें हुई हैं, कराची में रेंजर्स पर हमला हुआ, लाड़काना में हमला हुआ, घोटगी में हमला हुआ, इन हमलों में शहादतें हुई हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में हालिया दिनों में जो वाकयात पेश आए हैं, उन वाकयात के हवाले से, पाकिस्तान में होने वाले इन वाकयात के हवाले से मुसलसल भारतीय मीडिया, भारत में मौजूद वो अफराद जो भारत की खुफिया एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, भारत के एक्स मिलिट्री मैन खुलेआम कहते हैं कि वो पाकिस्तान में ऐसे अनासर से न सिर्फ ये कि राब्ते में हैं, बल्कि उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें वो मुतहरिक कर सकते हैं। और ये सिलसिला हमें मुसलसल नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। ताज़ा शहादतें वजीरिस्तान में हुई हैं, और फिर भारत के मुलव्वस होने के हवाले से पहले भी बात होती रही, लेकिन अब एक बार फिर MQM के मोहम्मद अनवर जो MQM लंदन में जो डिप्लोमेटिक विंग है उसके इंचार्ज थे, इससे पहले भी MQM पर बात हुई है कि रॉस उसकी फंडिंग होती है, अल्ताफ हुसैन के ऐसे बयानात मौजूद हैं, लेकिन अब मोहम्मद अनवर की जानिब से ये कहा गया है कि रॉस से फंडिंग होती है। ये ताज़ा डेवलपमेंट है, और उनकी जानिब से कहा गया है कि एक बार नदीम नुसरत ने उन्हें ले जाकर मिलवाया था एक भारतीय सिफारतकार से, आला अहदेदार से, और फंडिंग होती है, ये पैसे आते हैं। इस सिलसिले में एक डिटेल्ड स्टोरी आज आई है। तो ये जो शवाहिद थे ये भी और सामने आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के ताने बाने मिल रहे हैं, और पाकिस्तान इस वक्त खित्ते की सूरत हाल में जहां मुलव्वस किया जा सकता है, जिसके ख़तरात मौजूद हैं, उन तमाम चीज़ों के जो हमें तमाम शवाहिद थे वो अब इस वक्त कनेक्ट होते हुए, डॉट्स कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पिक्चर जो है इसमें हमें खुद ब खुद रंग भरते हुए नज़र आ रहे हैं,
اور اس تمام صورتحال میں ہمیں بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے دشمنوں کو غارت کرے، آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔